سورہ اخلاص قرآن کی اہم سورت مبارکہ ہے جس میں توحید بیان ہے۔ سورت اخلاص زندگی مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورت مبارکہ ہے جس کے مکمل فضائل و برکات کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہمارا یہ آرٹیکل سورہ اخلاص کی روحانی برکات کے حوالے سے ہے۔ سورہ اخلاص کا ورد فرد کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور جس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے تو مطلب یہ اس سورت مبارکہ میں آپ کی ہر مشکل، پریشانی، مصیبت اور بیماری کا حل ہے۔ سورت اخلاص پارہ 30 میں ہے اور اس کی 4 آیات ہیں جس میں توحید باری تعالیٰ بیان ہے۔ ایک دفعہ قریش والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل اور 70,000 فرشتوں کے ہمراہ نزول فرمایا۔ سورۃ اخلاص میں خالص توحید ہے، اس لیے سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کا محبت سے ورد کرنا دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ سورہ اخلاص پارہ نمبر 30 میں ہے اور یہ 112 نمبر سورہ مبارکہ ہے۔ اخلاص کے معنی خالص ہیں، یعنی یہ سورہ مبارکہ خالص توحید باری تعالیٰ کے احکامات پر مشتمل ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں چند حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا باعث بنتی ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص فور حاجات، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے۔ بہت سے افراد کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجات کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر کوئی بھائی یا بہنیں ہمیشہ اپنی خواہشات کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ محبت سے کریں۔ انشاءاللہ 7 دن میں اللہ کی ذات آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفے کے لیے آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک ذکر کریں، اور درمیان میں آپ 500 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ یاسین محبت سے تلاوت کریں۔ آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ 7 روز تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 روز میں آپ کو آپ کی خواہشیں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا۔ سورہ اخلاص فور جاب، اگر کوئی بھائی یا بہن جاب سے محروم ہے اور انہیں بے حد کوشش کے باوجود اچھی جاب نہیں مل رہی ہو تو وہ 7 دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو آپ کی پسند کے مطابق اچھی جاب حاصل ہو جائے گی، اور سورہ اخلاص کی برکت سے دن بدن آپ کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا۔ سورہ اخلاص کے اس وظیفے کے لیے آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک ورد کرنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 300 بار سورہ اخلاص کو محبت سے ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی پسند کی جاب حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 3، سورہ اخلاص فور رشتہ۔ بہت سی لڑکیاں اچھا رشتہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ اکثر لڑکیوں کی اچھا رشتہ نہ حاصل ہونے کی وجہ سے شادی کی اصل عمر بھی بیت جاتی ہے۔ بعض لڑکیاں اچھا رشتہ حاصل کرنے کی نیت سے قرآنی وظائف بھی کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں اچھا رشتہ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل میں لڑکیوں کی شادی اور رشتے میں بندش بہت جلد ہو جاتی ہے، اور اس بندش کی وجہ نظر بد بنتی ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے رشتے میں بندش ہو گئی ہے، اور نہ ہی بعض لڑکیاں بندش کو تسلیم کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کی اصل عمر گزر جاتی ہے، اور جب شادی کی عمر گزر جاتی ہے تو وہ بندش کے علاج کی طرف توجہ دینا شروع کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی لڑکی رشتے کی بندش کا شکار ہو چکی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسے جلد اس کی پسند کا رشتہ حاصل ہو جائے تو وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ صرف 7 دن کر لیں۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کو رشتے کی بندش سے نجات حاصل ہو جائے گی، اور جلد ہی آپ کو آپ کی پسند کا رشتہ حاصل ہو جائے گا۔
इस वजीफे के लिए आप फजर की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 10-10 बार दुरूद पाक जिक्र करें और दरमियान में आप 700 बार सूरह इखलास और 100 बार इसमें बारी ताला या मुसीबुल असबाब का मोहब्बत से विर्द करें। ये वजीफा आपने 7 दिन तक तमाम शरई अहकामात की पाबंदी के साथ करना है। इंशाअल्लाह 7 दिन में आपके लिए अच्छे रिश्ते अल्लाह के करम से आने लगेंगे। सूरह इखलास के वजीफे में कामयाबी हासिल करने की 3 शराइत आखिर में दर्ज हैं। इन शराइत को पढ़ने के बाद वजीफा करें। नंबर 4, सूरह इखलास फॉर मैरिज। बाज़ बहनों और भाइयों को अच्छा रिश्ता हासिल हो जाता है मगर इनकी शादी रुक जाती है। शादी रुकने की वजह खानदानी मुखालफत, नजर बद, काला जादू और शैतानी असरात हो सकते हैं और जब तक आपको बद असरात से निजात नहीं मिलेगी आपकी शादी में कोई ना कोई रुकावट और परेशानी आती रहेगी। लिहाजा अगर कोई जल्द शादी ना होने की वजह से परेशान है तो वो 7 दिन तक सूरह इखलास का वजीफा करे। इंशाअल्लाह आपको शादी की हर रुकावट से सिर्फ चंद दिनों में निजात हासिल हो जाएगी। शादी के लिए सूरह इखलास का वजीफा करने के लिए आप फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 10-10 बार दुरूद पाक जिक्र करें और दरमियान में आप 300 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह मुज़्ज़मिल तिलावत करें। इसी तरह यही अमल आपने इशा की नमाज के बाद भी करना है। इंशाअल्लाह 7 दिनों में अल्लाह की ज़ात आपकी शादी की हर रुकावट को दूर फरमा देंगे और आपकी शादी जल्द बगैर किसी रुकावट के हो जाएगी। सूरह इखलास के वजीफे में कामयाबी हासिल करने की 3 शराइत आखिर में दर्ज हैं। इन शराइत को पढ़ने के बाद वजीफा करें। नंबर 5, सूरह इखलास फॉर लव मैरिज। आज हर लड़की और लड़का मोहब्बत और पसंद से शादी करना चाहते हैं और मोहब्बत की शादी में कामयाबी के लिए वो बहुत से जायज़ और नाजायज़ तरीके अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इन्हें मोहब्बत की शादी में कामयाबी फिर भी नहीं मिलती और ना ही इनके वालिदैन शादी के लिए राज़ी होते हैं। मोहब्बत की शादी में कामयाबी के लिए बाज़ लड़के और लड़कियां आमलों से गुमराह होकर गैर इस्लामी अमाल भी कर लेते हैं। हत्ता कि अक्सर बाज़ लड़कियां पसंद की शादी में कामयाबी के लिए आमलों को अपनी फ़ोटो भेज देती हैं और बाद में ब्लैकमेल होती हैं। इस तरह का हर जायज़ और नाजायज़ तरीका अपनाने से भी इन्हें अपनी पसंद की शादी में कामयाबी नहीं मिलती। लिहाजा अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए किसी से निकाह करना चाहता है तो सूरह इखलास का वजीफा से बेहतर आपके रूहानी अमल नहीं है। सूरह इखलास का वजीफा के लिए आपने हर फ़र्ज नमाज के बाद 172 बार सूरह इखलास और 10 बार दुरूद इब्राहिमी मोहब्बत से विर्द करना है। इस वजीफे को आपने वजीफा की तमाम शराइत पर अमल करते हुए 14 दिनों तक करना है। इंशाअल्लाह दौरान वजीफा ही अल्लाह की ज़ात आपकी पसंद की शादी में कामयाबी के लिए असबाब पैदा फरमा देंगे। सूरह इखलास के वजीफे में कामयाबी हासिल करने की 3 शराइत आखिर में दर्ज हैं। इन शराइत को पढ़ने के बाद वजीफा करें। नंबर 6, सूरह इखलास फॉर हस्बैंड लव। शादी के बाद लड़कियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों में एक परेशानी शौहर की नफरत, गुस्सा और बेरुखी है। शौहर की नफरत, गुस्सा और बेरुखी की बुरी वजह शौहर की किसी गैर औरत से मोहब्बत हो सकती है। इसके अलावा शादीशुदा जोड़ों को आम नज़र लग जाती है जिसकी वजह से इनमें अख्तलाफात बगैर किसी मादी वजह के पैदा होते रहते हैं। शौहर की बेरुखी की वजह आपके किसी हासिद का करवाया गया काला जादू भी हो सकता है। लिहाजा अगर किसी बहन का शौहर इससे मोहब्बत नहीं करता और इसकी कोई भी बात नहीं मानता और किसी के सामने इसकी बेइज्जती कर देता हो तो वो बहन 7 रोज़ तक सूरह इखलास का वजीफा करे। इंशाअल्लाह 7 दिनों में आपके शौहर की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी और वो अपनी बीवी का इस कदर दीवाना हो जाएगा कि बीवी खुद हैरान रह जाएगी। सूरह इखलास का वजीफा के लिए आप हर फर्ज नमाज के बाद 100 बार सूरह इखलास और 300 बार इसमें या वदूद का मोहब्बत से विर्द करें। इस वजीफे को आपने 7 रोज़ तक करना है। इंशाअल्लाह 7 रोज़ में आपको आपके शौहर की हरकत और सकनात से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आपसे किस कदर मोहब्बत करता है। सूरह इखलास के वजीफे में कामयाबी हासिल करने की 3 शराइत आखिर में दर्ज हैं। इन शराइत को पढ़ने के बाद वजीफा करें। नंबर 7, सूरह इखलास फॉर औलाद। अगर किसी बहन के यहाँ औलाद ना हो रही हो और वो बहुत सी इलाज करवा चुकी हो तो इस बहन को चाहिए कि वो 11 रोज़ तक सूरह इखलास का वजीफा मोहब्बत से कर ले। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात इसे जल्द ही औलाद की नेमत से सरफराज फरमा देंगे।
औलाद ना होने की वजह मेडिकली हो या रूहानी, दोनों सूरतों में सूरह इखलास का वजीफा करना अफजल है। बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक अगर कोई शादीशुदा जोड़ा शादी के 40 दिन के अंदर अंदर किसी की नजर बद का शिकार हो जाए तो इन्हें जिंदगी में बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इन परेशानियों में एक परेशानी औलाद का ना होना है। लिहाजा अगर किसी बहन को औलाद ना हो रही हो या किसी बहन के यहाँ सिर्फ लड़कियां पैदा होती हों तो ऐसी सूरत में आप अल्लाह की बारगाह से जल्द औलाद हासिल करने के लिए सूरह इखलास को पाक स्याही से तहरीर करके अपने पास भी रखें और अपने घर में भी ज़रूर रखें ताकि आपके घर और वजूद से काला जादू, नजर बद, जिनात और हर किस्म के बद असरात दूर हो जाएं। इसके बाद आपने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 172 बार सूरह इखलास और 21 बार दरूद इब्राहिमी मोहब्बत से विर्द करना है। ये वजीफ़ा आपने 11 रोज़ तक करना है। इंशाअल्लाह 11 रोज़ के बाद किसी भी वक़्त आप पर अल्लाह का करम हो जाएगा, यानी आपका हमल ठहर जाएगा और अल्लाह के करम से आपको बेटा ही अता होगा, बशर्त यह कि सूरह इखलास के नक्श आपसे गुम ना हो। ये वजीफ़ा करने के बाद आप हस्बे इस्तात खैरात ज़रूर करें। नंबर 8, सूरह इखलास फॉर प्रेगनेंसी। बाज़ बहनों का किसी बीमारी या नजर बद की वजह से हमल नहीं ठहर पाता। औरतों का हमल ना ठहरने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में औलाद की बंदिश, नजर बद, काला जादू, जिनात या कोई पेचीदा बीमारी हो सकती है। हमल साकित हो जाने की बीमारी की वजह से ख़वातीन पर हो लाहक हो जाती है। ये बीमारी ख़वातीन की घरेलू जिंदगी और घरेलू सुकून को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती है। इसी बीमारी की वजह से शोहर अपनी बीवी से बदजन हो जाता है और हमल साकित हो जाने की वजह से ख़वातीन को बहुत सी नफ्सियाती अमराज भी लाहक हो जाती हैं। लिहाजा अगर किसी बहन को हमल साकित हो जाने का मर्ज लाहक हो गया हो तो इससे शिफा के लिए आप 7 दिन तक सूरह इखलास का वजीफा करें। इंशाअल्लाह आपको जल्द ही हमल साकित हो जाने की बीमारी से शफा मिल जाएगी। इस खास वजीफा के लिए आप पाक स्याही से सूरह इखलास को कागज पर तहरीर कर ले, अपने गले में पहन ले और इसके बाद आप हर फर्ज नमाज के बाद 72 बार सूरह इखलास पढ़कर पानी पर दम कर कर पी लें। ये अमल आपने हर फर्ज नमाज के बाद करना है और इसे 7 रोज़ तक अपने आपने जारी रखना है। इंशाल्लाह ये अमल करने के बाद आप पर जब भी अल्लाह का करम होगा तो इस बार हमल साकित नहीं होगा। याद रहे कि सूरह इखलास का जो नक्श आपने गले में पहना है वो डिलीवरी तक आपके गले में रहे और गुम ना हो, लेकिन वॉशरूम में जाने से पहले आपने इस नक्श को उतार देना है। नंबर 9, सूरह इखलास फॉर बिजनेस। अगर किसी भाई या बहन का कारोबार किसी वजह से चल ना रहा हो, बेहद पैसा लगाने के बावजूद कारोबार में नुकसान होता हो और इस वजह से फर्द कर्ज की दलदल में भी फंस गया हो तो कारोबार को कामयाब करने के लिए आप सूरह इखलास का वजीफा सिर्फ 7 दिन तक कर लें। इंशाल्लाह सिर्फ चंद दिनों में आपका कारोबार दिन और दिगनी रात चुगनी तरक्की शुरू कर देगा। कारोबार के नाम होने की वजह से नजर बद, काला जादू और बंदिश हो सकती है। अगर किसी फर्द के कारोबार पर किसी किस्म के बद असरात हैं तो ये बद असरात जब तक दूर नहीं होंगे कारोबार तरक्की नहीं करेगा। लिहाजा अगर आपका कारोबार आपको नुकसान के अलावा कुछ ना दे रहा हो तो आप 7 दिन तक सूरह इखलास का वजीफा करें। इंशाल्लाह जल्द ही आपका कारोबार आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू कर देगा। सूरह इखलास के वजीफे के लिए आप सबसे पहले सूरह इखलास को पाक स्याही से तहरीर करके अपने पास भी रखें और अपने कारोबार की जगह पर भी रखें ताकि आपके कारोबार की जगह और आपके वजूद से हर किस्म के बदअसरात दूर हो जाएं। इसके बाद आपने हर फर्ज नमाज के बाद 100 बार सूरह इखलास और 3 बार सूरह आले इमरान की आयत 26 और 27 का विर्द करें। इस अमल को आपने 7 दिन तक जारी रखना है। इंशाल्लाह 7 रोज़ में आपको कारोबारी बंदिश से नजात मिल जाएगी और आपका कारोबार आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा फ़ायदा देना शुरू कर देगा। ये वजीफ़ा बीवी और अपने शोहर और वालिदैन अपनी औलाद कारोबार में बरकत के लिए कर सकते हैं। नंबर 10, सूरह इखलास फॉर वेल्थ। दौलत हासिल करने की चाहत हर भाई और बहन की है। बाज़ अफराद को अपनी ज़िंदगी में दौलत हासिल हो जाती है, लेकिन बाज़ अफराद सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद इन्हें दौलत हासिल नहीं होती। फ़र्द को दौलत अच्छे मुकद्दर की वजह से मिलती है। जिन अफराद का मुकद्दर अच्छा होता है दौलत उन पर आशिक होती है और उन्हें बहुत कम मेहनत से भी दौलत हासिल हो जाती है। लेकिन जिन अफराद का मुकद्दर अच्छा नहीं होता तो इनकी मेहनत, कुर्बानी और हद से ज़्यादा जिद्दोजहद इनको कभी फ़ायदा नहीं देती, लेकिन इन्हें मेहनत के बावजूद भी नुकसान का सामना रहता है।
لہٰذا اگر آپ وافر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ آپ کا مقدر اچھا ہو، اور مقدر اچھا کرنے کے لیے سورہ اخلاص ہے۔ جو فرد سورہ اخلاص کا وظیفہ کامل یکسوئی اور توجہ سے کرتا ہے تو اللہ کی ذات اسے اس کی سوچ سے بھی زیادہ دولت دیتا ہے اور اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص کو پاک سیاہی سے تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 10 بار درود پاک ذکر کریں اور درمیان میں آپ 700 بار سورہ اخلاص اور 1 بار سورہ ملک محبت سے تلاوت کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کے وجود اور گھر سے ہر قسم کی نجس اثرات دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہو جائے گی، جس کی بنا پر آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور یہی اس وظیفے کی کامیابی کی علامت ہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے لیے دولت حاصل ہونے کے ایسے اسباب، غیبی اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے اور والدین اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ پارٹ 1 تھا۔ سورہ اخلاص کے 23 وظائف پیش خدمت تھے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تو 10 وظائف آپ کی نظر پیش کیے گئے۔ مزید 13 وظائف مع شرائط پارٹ 2 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔